Hello everyone, this is Deepa. A very good morning, students. I'm again here with the same chapter, chapter 5, History, When People Rebel, 1857 and after this. In my previous video, students, we have gone through the policies and the reaction of the people. Nawabs lose their powers, how they feels, and how the peasant and sepoys reacted on that, and what are the reformations done by Britishers, and what were the reaction. If you want to see what were the reaction and through the eyes of the people what happened, you just go through the two sources given on the page number 53 and 54 in your NCERT book. And the source number 1 is the list of 84 rules, and source second is there was soon excitement in every regiment. So you can just go through this and you will get what was the people's reaction and what happened at that time. Today I'm going to just start through these topics which is given here. A mutiny becomes a popular rebellion from Meerut to Delhi, and the rebellion spread. And what were the centers of revolt? I'll discuss in this video about these topics. So let's move, students. Let's see how a mutiny become a popular rebellion. A meaning of mutiny is when soldiers as a group disobey their officers in the army. जो ये म्यूटनी होती है एक सैनिक विद्रोह हम इसको मानते हैं, और जब सिपाही इकट्ठा होकर के अपने सैनिक अफसर को किसी भी जो भी उनका ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, या उनके किसी हुक्म को मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो उसको हम म्यूटनी बोलते हैं. और ये छोटा सा सैनिक विद्रोह कैसे एक मासस का पॉपुलर रिबेलियन बन गया, किस तरीके से जन विद्रोह बना, विल सी इन दिस टॉपिक. In May 1857, a massive rebellion started that threatened the company's very presence in India. Sepoy mutined in several places beginning from Meerut, and a large number of peoples from different sections of society rose up in rebellion. The sepoys refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of pig and cows. Thus tension grew between sepoys and the company. So now in my previous video I have explained about what is the tension and what was the immediate cause of this rebel. So I'm just going to explain it here also. 1857 के राउंड में एक मासिव रिबेलियन स्टार्ट हुआ, जिससे क्या हुआ कि कंपनी की जो प्रेजेंस थी वो भी मतलब वो लोग भी घबरा गए कि किस तरीके से अब उसको शॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उस रिबल को हैंडल किया जाए. जो सिपाही थे उन्होंने कुछ छोटे छोटे जगहों पर इकट्ठा होकर के कई जगहों पर विभिन्न एरियाज़ में जाकर के उन्होंने उसे स्टार्ट किया. बट इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द एरिया दैट इज़ नोन एज मेरठ. And a large number of people from different section of society rose up in rebellion. इस rebellion में बहुत हर तबके के लोग आए, हर ग्रुप के लोग आए, ज़मींदार भी आए, और काफ़ी सारे लोग मतलब इसमें इंक्लूड हुए. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि राजा महाराजा, ज़मींदार, पीजेंट्स, और क्या कह सकते हैं हम, किसान अपने, और उसके बाद जो सैनिक थे, सभी तरह के लोग इसमें इंक्लूड हुए. द सिपोइज रिफ्यूज़. और ये जो हमारा ये कार्ट्रिज का केसेस है, इसमें क्या था, एक बारूद था जो कि सिपोई ने रिफ्यूज कर दिया था अपनी आर्मी ड्रिल में उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से. उसमें कहा जाता था उसको जब उसे स्टार्ट करते थे उसको अपने मुंह से खोलना रहता था, और ऐसा माना जाता कि उसमें जो रस्टिंग के लिए रस्टिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो मतलब एक तरीके से जो कोटिंग की गई है, उसके ऊपर जो परत लगाई गई है, वो किसकी है, पिग और काऊ के फैट से मिक्स है. तो दे वांट कि डेलिबरेटली पीपल्स वांट कि हमारा धर्म भंग हो जाए, हमारे धर्म की प्योरिटी को भंग करना चाहते हैं, इसीलिए. और इस टेंशन इतना ग्रू हो गई कि लोगों ने कंपनी और सिपाहीज के बीच में टेंशन्स बढ़ती चली गई. द सिपाहीज वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग एन एंड टू द कंपनीज रूल. और सिपाही क्या चाहते थे कि एक
एंड आ जाए किसी भी तरीके से, जो हमारा कॉलोनियल रूल हमारी कंट्री में चल रहा है वो. फ्रॉम मेरठ दे रश टू दिल्ली, and as the news of this arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. They met the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar and proclaimed him as their leader. The Mughal Emperor got support from the rulers and chiefs of the country, and together they rose against the British power. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for a few days. Then a spurt of mutiny began. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि जो ये छोटी सी म्यूटनी थी, ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो शासक लोग होते हैं उनके बीच में हमारे साथ कभी जो प्रजा होती है उसके साथ उनका युद्ध नहीं होता, मगर ये छोटे मोटे लेवल पे होते, लेकिन कभी इतना बड़ा संघर्ष हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी. और ये जो सत्ता होती है, जो इनकी सत्ता थी एक तरीके से एकदम से हिल गई. इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये पूरा हिल गया ब्रिटिशर्स का जब ये म्यूटनी हुई. हमने देखा कि ये जो मेन पार्ट था ये हमारा नदर्न इंडिया में हमने ये सिचुएशन को देखा कि जो कि नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप हुई थी 1857 में. और ये जो टाइम पीरियड था एटलीस्ट 100 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर राज कर चुकी थी, है ना. और उसको कभी ये लगता भी नहीं था ब्रिटिशर्स को कि आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ द विक्ट्री वी कैन से, है ना, कि उनका जो आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कनकस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेज अ मासिव रिबेलियन. उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना मासिव रिबेलियन होगा. एंड फॉर दैट थ्रेटेंड एंड व्हेन इट स्टार्टेड इन मेरठ ना, it started with a soldier that his name is Mangal Pandey. Later on I'll discuss on about his. Some regards it as the biggest armored resistance. हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों ने इस इस विद्रोह को कहा कि ये मेरठ से शुरू होकर कुछ सिपाहियों की जो बगावत थी ये पूरे एक तरीके से पूरे हमारे ऑल इंडिया में फैल गई, मतलब पूरे भारत में फैल गई. और समाज के विभिन्न जो एरियाज़ के लोग थे उन्होंने अपना अपना मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ लोग सामने आए और अपनी लीडरशिप की उन्होंने. और ऐसा माना जाता है कि 19th जो सेंचुरी थी उसमें ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में दुनिया भर का सबसे बड़ा मतलब वी कैन से कि सबसे बड़ा बिगेस्ट आर्मर्ड रेबल था, है ना. एंड ऐसा भी इतना कहीं पर भी नहीं हुआ था, इतना बड़ा संघर्ष पूरी वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था जैसा कि 1857 में इंडिया में ये रेबल स्टार्ट किया गया. और फिर धीरे धीरे लोगों ने फिर क्या स्टार्ट किया कि दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स मेरठ टू दिल्ली एंड वेयर दे मेट टू एम्परर बहादुर शाह जफ़र. स्टूडेंट इससे पहले कि थोड़ी सा ये है कि जब ये बहादुर शाह जफ़र से मिले तब उन्होंने ज़बरदस्ती अपना लीडर घोषित कर दिया बहादुर शाह जफ़र को, जबकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे. वो खुद भी कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के साथ कोई लड़ाई या कोई रेबल रखना नहीं चाहते थे, किसी तरीके का कोई युद्ध करना नहीं चाहते थे. जब उनको मुग़ल एम्परर का सपोर्ट मिला, मुग़ल एम्परर गॉट सपोर्ट फ्रॉम रूलर्स एंड चीफ्स ऑफ द कंट्री, जब पूरे देश से उनको सपोर्ट मिला तब टुगेदर दे रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, तब वो खड़े हुए ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट में जाके. एंड आफ्टर द ब्रिटिश वर राउटेड फ्रॉम दिल्ली दे वर नो अपराइजिंग फॉर अ फ्यू डेज. फिर कुछ समय के लिए इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अपने वॉर को रोका और उसके बाद एक स्पर्ट ऑफ म्यूटनी बिगेन की. ठीक है, अपने आप ही फिर उस म्यूटनी को बहुत तेज़ी से एक चिंगारी के साथ तेज़ी से बढ़ाया. So let's see further. From Meerut to Delhi, what happened from Meerut to Delhi? On 29th March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, sorry, he is only one soldier. Young soldier should not be there. He is only soldier. Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officer in Barakpur. क्या किया गया, इसको बैरकपुर में जगह में अपने ऑफिसर को इसने मना कर दिया था. अफसरों पर मतलब
जो कार्ट्रिज को लेकर के इसके अंदर जो रिवोल्ट चल रहा था, उसकी वजह से इसने क्या किया, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। इसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया, इसके वजह से इसको हैंग टू डेथ कर दिया गया, मतलब फांसी पर लटका दिया गया। और ये जो इवेंट है ये कब हुआ, ऑन 29 मार्च 1857। सम डेज लेटर, कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ, जब इसकी वजह से कई सारे लोग ना, मतलब अगेंस्ट में ब्रिटिश एम्पायर के आ गए, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में आ गए। सम डेज लेटर 85 सिपॉइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years jail for disobeying their officers. This happened on 9th May 1857. तो यहाँ हमें थोड़ा डिफरेंस मिला ना कि 29 मार्च से 1857 के बीच में जो डिफरेंस आया, ये टाइम पीरियड लोगों ने, जो सैनिक थे उन लोगों ने लिया। इसके बीच में लोग ना धीरे धीरे क्या करने लगे, उनको वो अपने उस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना करते गए, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो आर्मी ड्रिल चल रही थी उसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। Here I have written this: the 85 सिपाहीज were dismissed from service and sentenced to 10 years of jail, और 10 साल की उनको सजा कर दी गई। And this happened on 9 May 1857. और क्यों, why this happened? For disobeying their officers. And after that, on 10th May, what happened? The soldiers marched to jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on Firangis. सो वी कैन से कि जो 10 मई को इन्होंने क्या किया, सोल्जर्स ने जेल की तरफ मार्च किया और मेरठ की जेल में गए और वहाँ जाके धावा बोल दिया, और जो वहाँ पे सिपाही लोग थे उनको क्या किया, रिलीज़ करा दिया, आज़ाद करा दिया। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, कई सारे जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इंग्लिश ऑफिसर्स थे, उनको पर हमला करके उन्हें मार भी दिया। और जो वहाँ बंदूक और हथियार वगैरह जो रखे हुए थे, जो भी गन एंड एम्यूनिशन, यानी कि जो भी वॉर में यूज़ होने वाली जो भी जो भी चीज़ें होती हैं, वो एक तरीके से उनको क्या किया, इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने कब्ज़े में ले लिया। जितने भी वेपन्स थे, जितनी गन्स वगैरह थी, जो भी बॉम्ब्स वगैरह, जो मतलब जो भी वट एवर दे कैन यूज़ इन द वॉर, वो उन्होंने अपने अंडर में लेने के बाद बिल्डिंग्स और जो वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें क्या की, सेट ऑन फायर, मतलब सेट फायर, आग लगा दी वहाँ पर। एंड उन्होंने जो हमारे फिरंगीज़ हैं, हियर द वर्ड इज़ फिरंगीज़, ये दिस इज़ यूज फॉर ब्रिटिशर्स, फिरंगियों के खिलाफ क्या किया, युद्ध का ऐलान कर दिया, ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज़। ठीक है, नाउ आई होप दिस मच यू हैव अंडरस्टैंड। दिस मूव टूवर्ड्स न्यू स्लाइड, न्यू टॉपिक, द rebellion spread. Before telling you rebellion spread, I'll explain some more incidents what happened when they met to the Bahadur Shah Zafar. The rebellion spread means here कैसे जो rebellion था कि कहाँ कहाँ spread हुआ और कैसे spread होना start हुआ। जो भी जब इन लोगों ने क्या किया, फिरंगियों के अगेंस्ट में जाके एक रिवोल्ट डिक्लेयर कर दिया, एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये 10 मई की नाइट में लोग ना दिल्ली जा कर के ये न्यूज़ दे रहे हैं बहादुर शाह ज़फ़र को, और लाल किले के जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं। गैदर होने के बाद दे हैव डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। एंड आफ्टर दैट जो मुग़ल बादशाह हैं वो भी रेडी नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद ब्रिटिश उन्होंने बहुत सारे जगह पे जा कर के जितने भी शासक वगैरह था मुग़ल बादशाह को रेडी कराने के बाद उन्होंने उनसे एक लेटर लिखवाया, सो दैट कि वो जितने भी इंडिया के अदर स्टेट्स हैं उनमें एक यूनियन बनाएं और उनको कॉल करें फॉर द वॉर। ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ लोगों के अंदर, that often when people see an alternative possibility they feel inspired and enthusiastic
इट गिव्स देम द करेज एंड होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट. मतलब जब भी कोई लगता है कि कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उसके बाद जब कोई रास्ता दिख जाता है तो लोगों के अंदर क्या आ जाता है, उत्साह आ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, साहस आ जाता है, करेज. और इसी हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हुए. नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हाउ द रिबेलियन स्प्रेड, कैसे ये बगावत फैलती चली गई. Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, jamidars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Here one name is Nana Sahab, that is, he is adopted son of the late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city, and who proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. So just I'm going to explain it in Hindi. एक के बाद एक जो म्यूटनी थी, जो ये एक रेजिमेंट में जो सिपाही ने विद्रोह किया था, वो आगे बढ़ के कहाँ पहुँच के इन्होंने कुछ नोडल सेंटर्स बनाए अपने इकट्ठा होने के लिए. उन नोडल सेंटर्स में हम नाम ले सकते हैं जैसे कि दिल्ली, कानपुर और लखनऊ सेंटर्स बनाए, और अपनी जो ट्रुप्स थे, जो आर्मी की जो ग्रुप ऑफ आर्मी पीपल्स थी, उनको क्या किया, इकट्ठा होने के लिए बोला. और अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने कस्बों में, गांव में भी जाकर लोगों में क्या किया, ये सारी बातें बताई, जिससे लोग भी उनके साथ हो लिए. और बहुत सारे जो लोकल लीडर्स थे, जमींदार थे, जो भी चीफ्स वगैरह थे, वो भी उनके साथ ऐड हो गए. वी कैन सी हियर द अराउंड लोकल लीडर्स एंड जमींदार चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश. इन्होंने कलेक्ट होकर टाउन और विलेजेस में रोज अप होते हुए रैली बना करके ये एक जगह पर जाके इन्होंने पूरी प्लान आउट किया कि हाउ दे विल फाइट. और ये जो नाना साहब थे, नाना साहब जो कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र हैं, अडॉप्टेड सन हैं, जो कि कानपुर में रहते थे, इन्होंने भी अपनी सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर में ले जाके, मतलब जो ब्रिटिश सैनिक जो थे गैरिसन में, जो सेना की जो छावनी बनी हुई थी, उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, अपने कानपुर के एरिया से बाहर निकाल दिया, और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया बाहर की तरफ. और उन्होंने खुद को क्या किया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, और ख़ुद को उन्होंने पेशवा घोषित कर दिया. उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर हैं किसके अंडर में, बहादुर शाह जफ़र के अंडर में. एंड उसके बाद लखनऊ में जो नवाब थे, नवाब वाजिद, जिनको पहले इन्होंने क्या किया था, थ्रोन से हटा दिया था, गद्दी से हटा दिया था, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कादर को क्या किया, नया नवाब घोषित कर दिया. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ न्यू नवाब. वी कैन सी ही टू एक्नॉलेज द सजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र ऑल्सो. और उन्होंने भी क्या एक्सेप्ट किया कि कैसे हम मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे. नाउ move towards what are the centers of rebellion and main centers of revolt. So we'll start from in Lucknow. Birzis Qadir, the son of deposed Nawab Wajid Ali Shah, was proclaimed the new Nawab. He too acknowledged sovereignty of Bahadur Shah Zafar. His mother Begum Hazrat Mahal took an active part in organizing the uprising against the British. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys and fought the British along with Tatya Tope and Aji Mullah, who are the able commanders of Nana Sahib. In Mandla, region of Madhya Pradesh, Rani Avanti Bai Lodhi of Ramgarh raised revolt. तो
ये वो एरियाज़ हैं जिन एरिया से एक न्यू लीडर सामने आए, और हम कह सकते हैं कि हमने भी कानपुर से देखा था कि नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के बेटे हैं, अडॉप्टेड सन हैं, उन्होंने अपनी सैनिकों को इकट्ठा किया और गैरिसन से लोग ब्रिटिशर्स को भगाया। और उसके बाद लखनऊ के जो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे हैं ब्रजेश कादर, उन्होंने अपने आप को नया नवाब घोषित किया है ना, प्रोक्लेम हिम द न्यू नवाब। इन्होंने भी रेबल को ज्वाइन किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली किसकी सजोरिटी, एक्सेप्ट कर ली कि वो मतलब बहादुर शाह को अपना बादशाह मानते हैं और उनके अंडर में उनके साथ ही फाइट कर रहे हैं। एंड हिज मदर बेगम हज़रत महल, इन्होंने भी, जो उनकी मदर थी हज़रत महल, इन्होंने भी एक्टिव पार्ट लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बगावत थी। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये इन्होंने भी सिपाहियों के साथ, विद्रोही जो सिपाही थे के साथ जा मिली, जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे, और उन्होंने भी नाना साहब के सेनापति जो कि तात्या टोपे हैं और उनके एक एबल कमांडर ऑफ नाना साहब अजीमुल्ला साहब हैं, उन लोगों के साथ मिल करके फाइट किया। और जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है मांडला, यहाँ से रानी अवंतीबाई लोधी ने फाइट किया। ये रामगढ़ की थी, इन्होंने भी रिवोल्ट में अपना एक्टिव रोल निभाया। Now see, the British were greatly outnumbered by the rebel. Here two or three more members are there. जैसे कि we can say Maulvi Ahmadullah and Bakht Khan also. In the slide, I'll explain about them. The British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in number of battles. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. For example, Ahmadullah, a Maulvi from Faizabad, Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge, who came to Delhi and became a key military leader of the rebellion. In Bihar, an old zamindar named Kuwar Singh joined the rebel. Many leaders came up. Leaders and fighters from across the land joined the fight. So students, what happened कि जो ये इतनी विद्रोही जो टुकड़ियाँ थीं, इसके सामने अंग्रेज़ों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा कम थी, ग्रेटली आउट नंबर्ड। बहुत सारे मोर्चों में तो इतनी ज़बरदस्त उनकी हार भी हुई। दे वर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। इसके बाद लोगों को इस चीज़ का यकीन होने लगा, फेथ आ गया इनको कि अंग्रेज़ों का शासन, कॉलोनियल रूल अब ख़त्म होने वाला है। इट केम टू बी एन एंड। आफ्टर दैट लोगों को विद्रोह में लोग लड़ाई कर रहे थे, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला गया। और सबसे लास्ट वी कैन से कि जो अवध का जो इलाका था, ये इसमें भी ये आपको मैंने आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ द लास्ट टेरिटरी विच इज़ वी कैन से टेकन बाय ब्रिटिशर्स। उसमें भी जाकर के ऐसी बगावत की स्थिति हो गई थी अवध के चारों तरफ भी। 6 अगस्त 1857 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर जो थे, उन्होंने अपनी कमांडर इन चीफ को एक टेलीग्राम सेंड किया। उसमें लिखा कि ये फर्स्ट टाइम है जो हम इतना परेशान हो रहे हैं, एंड हिज स्टेटमेंट इज़ दैट our men are cowed by the number of opposed to them and endless fighting. Every village is held against us. The jamidars have risen to oppose. यानी कि हमारे जो लोग हैं, विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, और एक एक गांव हमारे खिलाफ़ है और ज़मींदार भी हमारे खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं। ये उन्होंने अपने टेलीग्राम में सेंड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को 6 अगस्त 1857 में। तो इससे ये पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स कितना डर गए थे इस रिवोल्ट से। इसके बाद बहुत सारे नेता लोग सामने आए। वी कैन से कि जैसे आई हैव गिवन यू द नेम, द मौलवी अहमदुल्ला एंड बख्त खान फ्रॉम बरेली एंड
बिहार में ओल्ड ज़मींदार कुंवर सिंह, ये सब लोग न्यू सामने आए। इन्होंने भी ऐसी, मौलवी अहमदुल्ला ने भी ये प्रोफिट किया, ऐसी प्रोफेसी दी कि अंग्रेज़ों को अब शासन ख़त्म होने वाला है और वो अब जनता जो चाहती है वो होने वाला है। अब समझ चुके हैं कि कैसे इस रिवोल्ट से निकलेंगे। और जो उनके समर्थक लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए लखनऊ में जा कर के इकट्ठे हुए। एंड दिल्ली में जो अंग्रेज़ों को जो सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी लोग थे, यानी कि जो धर्म योद्धा थे, जो लोग रिलीजन्स को लेकर फाइट कर रहे थे, बरेली के सिपाहियों के साथ मिलकर बख्त खान ने एक बहुत बड़ी टुकड़ी इकट्ठी की दिल्ली में, और वहाँ जाके दिल्ली में चले गए और इस बगावत से एक मुख्य व्यक्ति बनकर सामने आए। आई हैव जस्ट रिटन हियर कि बख्त खान बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। ही हैज़ टेकन चार्ज एंड केम टू दिल्ली। और जो कुंवर सिंह हैं जो कि बिहार से हैं, ज्वाइन द रेबल। और बहुत सारे न्यू लीडर्स जिनका कई लोगों का आई हैव नॉट मेंशन द नेम हियर, केम हियर एंड taken part into this revolt. Leaders and fighters from across the land joined the fight. और जो तमाम इलाके थे उन्होंने नेता और लड़ाके इस युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। So this is all about this revolt, students. Thank you very much for listening. I'll come again here with the how company fights back and what happened after this. Okay, thank you very much for listening. Thank you very much.